word page is visible to you all? Yes, sir. Let me know. Yes, sir. In last lecture, I told about this query and explain this query. Modify the database so that Ajay now lives in Mumbai. The logic behind this query is, first find out the tuple related to Ajay and then discard that tuple from the imply, performing set difference operations of relational algebra, and then perform union operations with the new tuple. And in the new tuple, Ajay city is Mumbai. So here see this expression. First we select the tuple related to Ajay by sigma e name equal to Ajay from table imply, and we store this tuple into R. Then here we discard at R from the imply. Now Ajay related tuple is not in the imply table, and again with the updated value, and in updated value we update only the Mumbai, and e name and street is old value. So there is no change in e name and street, but city is replaced by new value Mumbai. Okay, and where we perform this on R and then union, we will take union. And in SQL, simply write update imply set city equal to Mumbai where e name equal to Ajay. Why? Because e name is a primary key. Then compiler will not confuse. And if multiple Ajay, then all the city of the Ajay, yeah, city of all the Ajay change to Mumbai. But here we use e name as a primary key. Did you get it? Now next query. Give all employees of TCS a 10% raise. So meaning of this query is, we give increment to all the employees of TCS 10%. 10% jump in the salary. So how will you do? Let me know. Actually in employee table there are three attributes: e name, street and city, and in works for e name, then company name, and I think third one is salary. So you have to increase 10% of the existing salary. So how will you perform this thing? We have to update works for table and especially salary column. So what will we do, Himanshu? Hello, Divyanshi. Mileni, नो रिस्पॉन्स. Yes, sir. क्या करोगे आप? सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट करना है तो क्या करोगे? क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे? तो वर्क्स फॉर वाला टेबल यूज करेंगे. ओके, हमें तो अपडेट वाला बता दो कि सैलरी में क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे कि 10% इंक्रीमेंट हो जाएगा. सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 0.10 इंटू सैलरी. ये होगा या नहीं? Yes, sir. If we write the expression salary equal to salary plus 0.10 into salary,
Again, if we'll take sir. salary common, then salary in bracket 1 plus 0.10, and if we add, then 1.1. Can we write this expression? Salary equal to 1.1 into salary. Hello? Yes, sir. Can we write? Yes. So here, see first in relational algebra, we filter tuples related to TCS. Okay, and we store all the tuples of works for related to TCS in R. Okay, then we discard it from the works for, and again union with E name and company name. No change in employee name, no change in company name. Only salary सैलरी को सेट कर दिया जाए. is replaced by 1 into salary. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. And we perform that on R. Now we perform this in R. Why? Because TCS related tuples are available in R, but in works for, tuples related to all companies are present. Did you get it? Yes, sir. Yes, sir. And if we want to write in SQL, then again update table name. Here we will not use table keyword. Update table name, set salary equal to salary into 1.1. For this expression, we give 10% hike in the salary of each employee, and where company name equal to TCS. Now I think you all understood this concept. Okay. Next query. Delete all tuples of works for employees working for TCS. तो इसमें आपको क्या करना होगा? डायरेक्ट आर में स्टोर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो. वर्क्स फॉर माइनस सिग्मा कंपनी नेम इक्वल टू TCS वर्क्स फॉर. तो ये डिलीट हो गया. अगर आप चाह रहे हो तो पहले आर में कर दो, तो यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्रेशन न लिख के आर करना पड़ेगा. तो क्या होगा? All the tuples related to TCS will be deleted from works for. और SQL में अगर लिखना हुआ तो कैसे लिखोगे? सिंपल, तो लिख देंगे delete okay. where company name is equal to TCS. तो आई थिंक कि ये जो है क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत सी क्वेरी आप सॉल्व कर लोगे अगर इस क्वेश्चन को आपने एक बार पढ़ लिया है, विजुलाइज कर लिया है, एंड आफ्टर दैट you all have to implement this in SQL. Okay. Now, in division operations, how to implement division operations in SQL? I think I have to explain this thing, na? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Have you implemented division operations in SQL? No, sir. Anyone? No, sir. Okay. So division operations will be implemented by set difference operations of relational algebra. But here we will use correlated query. Actually, there are two types of the query. One is nested query or subquery, query within query. And another type of the query is correlated query. Means one query is related to another query. Or you can say that one query is dependent on another query. So with the help of the correlated query, and in correlated query we use where exists or where not exists. This keyword we will use for correlated query. So now let me
connect Oracle server first. Okay. The screen is visible to you all? Black screen is visible Yes, Yes, to sir. you all? visible. Visible है. Yes, Visible है, sir. sir. Okay, okay. Now let me connect. We connect through Oracle server with command connect system, and you can type password also. Then there is no need to write again password. So connect system / manager. So user ID and password you can enter into one go. Okay. So now it is connected. Again visualize. There are 3 tables. One is customer table, second table is account table, and third table is branch table. And how many attributes in customer table? Please let me know. Account table is available, and in account table there are 3 attributes: account number, branch name, balance. Okay, and then I have already created all the table. In branch table there are 3 attributes: branch name, branch city, and Correct. assets. Yes, sir. And let me see. Select star from app. This is the metadata or data dictionary. All the informations related to table are stored in this table. So let me see what is the name of that table. A, B, depositor. Name of the table is depositor, not customer. See here. Yes, sir. दिख गया. So here all the tables are stored in data dictionary. These are the system generated tables, and this is the user created table as employee, employee 1, and you can see the structure of the tab table using the same command, describe tab. In tab there are 3 columns: T name, table type, and cluster ID. Cluster ID. Actually, whether the table is clustered or not. So for fast accessing, we do the clustering. Okay, and this is the job of database administrator. So here there are 3 tables. One table is depositor. Depositor deposit money in their account. So in depositor there are 2 attributes: customer name and account number. Again, account, and last one is branch. And what was query for division operations? I have already explained division operations in relational algebra. Okay, I have already explained. And query was find out the name of depositor who have account in the all branch of Noida city. Hello. So what was the expression in relational algebra? Please let me know. What was the expression in relational algebra?
first step is we join account table and branch table, and then find out account number and branch city through projection, and then divide by that thing is by branch city, and selection branch city equal to Noida on branch. Hello, did you recall this thing? Yes, sir. Yes, sir. Mileni? Yes, sir. Okay. Now see the tuple. एक्चुअली टपल जो है क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया रहेगा, आपको टपल जो है खुद विजुलाइज करना होगा. तो सेम टपल्स आई हैव एंटर्ड इनटू द टेबल whatever I have explained in the lecture. Customer name Ram, account number 101, again second account number is 102, third account number of Ram is 103, Syam account number 104, Alok account number 105. Again select a star from account. 101 is situated in sector 1, 102 account is in sector 18, and 103 is in sector 22, 104 is in alpha 1, 105 is in alpha 2. And third table we retrieve tuples from third table branch, and here sector 1 is in Noida, sector 18 is in Noida, sector 22 is in Noida, alpha 1 is in Greater Noida, alpha 2 is in Greater Noida. Now I am going to write SQL to perform division operations to obtain the name of depositor who have account in all the branches of Noida city. And in Noida city there are 3 branches, and depositor should have account in all these 3 branches. So for retrieving this information we will write select let me see cust name, select cust name from depositor D, and here D dot customer name. We rename the depositor table with new name D. Okay. Now we will use where not exists. We will use where not exists. Again select branch name from branch table. I will explain you. Okay, first let me write whole expression. Select branch name from branch where branch city is equal to Greater Noida. Equal to Noida. Actually Greater Noida से related कोई डेटा ही नहीं है. ओके, ठीक है सर, ठीक है. तो कुछ आएगा ही नहीं, ब्लैंक आ जाएगा. Then minus and
here we will join both table, depositor and account. So for joining both table, and then we will find out the branch name. So here we will write select suppose we rename the account table, then branch name from one table is depositor, okay, one table is depositor and another table is account. Here, account A. We will join two table, account and then here we have to join which table? Account and branch. Hello. Here we will join two table, branch and account. Why? Because branch city and branch name is not in the single table. Then to obtain that, we join branch and account. Hello. Yes, sir. Our branch name, account number is in depositor table or not? Have you remembered that expression? In relational algebra, I think we join depositor and account. Okay. So in depositor and account, after joining depositor and account, there are 1, 2, 3, 4, 6 column, and then divide with selection branch city equal to Noida branch. Actually we join depositor and account. Okay. I am writing. Actually branch name is in account na, so we need branch name and divided by branch name, and through filter we find out the all branches of the Noida, and then we divide customer and account with all branch of the Noida. Okay, I am going in right direction. Then where, अब ज्वाइन कंडीशन क्या लिखेंगे हिमांशु बताइए? डिपॉजिटर एंड अकाउंट ए को हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो ज्वाइन कंडीशन क्या होगा? व्हाट इज कॉमन इन डिपॉजिटर एंड अकाउंट? प्लीज लेट मी नो व्हाट इज कॉमन इन डिपॉजिटर एंड अकाउंट. अकाउंट नंबर. अकाउंट नंबर. हाँ तो बताइए, तो क्या लिखेंगे? K dot account number. गुड. K dot account number इक्वल टू बताइए. A dot account number. हाँ आपको बताना है. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेरी है और जनरली ये मिलता भी नहीं है, लोग इसे एक्सप्लेन भी नहीं करते हैं. ठीक है, तो वेयर K डॉट अकाउंट नंबर इक्वल टू A डॉट अकाउंट नंबर, ये तो ज्वाइन कंडीशन हो गया. एक कंडीशन और आपको लगाना होगा. Yes sir. जो D डॉट customer नेम इक्वल टू, बताइए, इक्वल टू K डॉट कस्टमर नेम. भी आपको एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं. पहले एग्जीक्यूट करके देख लिया जाए रिजल्ट आ रहा है कि नहीं सही.
आ रहा है यहाँ पे ब्रांच नेम इनवैलिड आइडेंटिफायर। select D dot customer name from depositor D where not exists. Select branch name from branch where branch city equal to Noida minus select, ये जो हमने लिखा है K dot branch name, ये सही है? बताइए हिमांशु, K डॉट ब्रांच नेम लिखा है, ये सही है? सही लग रहा है सर। क्यों सही है यार? K क्या है? डिपॉजिटर सर टेबल के का है क्या? K डिपॉजिटर का रीनेम है ना। हाँ एक सर अभी बार रीनेम किया डिपॉजिटर था हमने। यहाँ किया है, देखो बेटा यहाँ पे डिपॉजिटर K कर दिया है। एक्चुअली हम मिरर इंस्टेंस यूज कर रहे हैं डिपॉजिटर का, एक बार उसको D कह रहे हैं, दूसरी बार क्या कह रहे हैं? K कह रहे हैं। तो क्या डिपॉजिटर में ब्रांच नेम है? बताओ, डिपॉजिटर टेबल में कितने एट्रीब्यूट्स हैं? 2 ही एट्रीब्यूट्स तो हैं डिपॉजिटर टेबल में। यस सर, यस सर। तो क्या ये वैलिड है? नहीं सर। इसीलिए देखो आपको बता रहा है ब्रांच नेम इनवैलिड आइडेंटिफायर। कितना मतलब आपका जो है इंटेलिजेंट है Yes. कंपाइलर। आप गलत करते हो तो ये आपको बताता है कि नहीं। तो यहाँ पे के की जगह क्या होना चाहिए बताओ? ब्रांच नेम किस टेबल में है? डी वाली में क्या? अरे देखो ऊपर ब्रांच नेम सर ऊपर। किस टेबल में अकाउंट है? अकाउंट में है। एक्चुअली दो ऊपर ही को है। तो ज्वाइन कर रहे हैं, आइदर ब्रांच नेम यस सर। एग्जिस्ट इन के आर ए। तो हमने गलत से क्या लिख दिया था? के। ए वो लिख था दिया। कहां पे? ए में था। तो गलती यही थी सर। अब आप देखिए कि राम 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 3 बार आ गया। अब मान लो 100 अकाउंट अगर है किसी का तो उसका नाम 100 टाइम्स आ जाएगा। क्यों आ रहा है ये भी बताते हैं थोड़ी देर बाद। लेकिन इसको अगर एक ही बार नाम आना है तो आप क्या करोगे? इसमें एक डिस्टिंक्ट कीवर्ड है इन एसक्यूएल। पहले हमने डिस्टिंक्ट नहीं लगाया क्योंकि फिर आप ये ना समझते कि 3 बार क्यों आ रहा है। में क्या लगा दिया? डिस्टिंक्ट। तो क्या आ गया? एक बार आ गया सर। यही आंसर था। आंसर यही चाहिए था कि नहीं? यस सर, यही चाहिए। तो आपने देखा होगा कितना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है। हम्म। और इसीलिए जो है ये बुक में भी जनरली नहीं मिलता है। लेकिन जब आप इंप्लीमेंट करोगे, इसको इंप्लीमेंट कर लिया तो डिवीजन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आएगी आप इंप्लीमेंट कर लोगे। अब आप लॉजिक समझिए कि लॉजिक है क्या। ये पहले हम डिस्टिंक्ट हटा देते हैं। इसे हमने डिस्टिंक्ट हटा दिया। ये जो है नेस्टेड क्वेरी नहीं है। ये कौन सी क्वेरी कहलाती है? अभी हमने बताया था कोरिलेटेड क्वेरी। मीन्स ये जो पार्ट है सेलेक्ट डी डॉट कस्टमर नेम फ्रॉम डिपॉजिटर डी, दिस क्वेरी इज रिलेटेड टू दिस क्वेरी। एंड सब क्वेरी में क्या होता था कि फर्स्ट वी एग्जीक्यूट द इनर क्वेरी and get the result from the inner query, and then we will use that result for executing the outer query. But here both are executed simultaneously. Did you get it? यस सर। Himanshu,
अब क्या हो रहा है कि ये एक एक कस्टमर को यहां से लेगा, जैसे आपने किया डी डॉट कस्टमर नेम फ्रॉम डिपॉजिटर, एक टपल उठाएगा डी से, ठीक है। उस टपल के लिए सेलेक्ट करेगा सेलेक्ट ब्रांच नेम फ्रॉम ब्रांच वेयर ब्रांच सिटी इक्वल टू नोएडा, तो इससे प्रोजेक्ट होके क्या आ जाएगा, सेक्टर, कौन कौन से सेक्टर थे इसमें, सेक्टर 1, सेक्टर 18 एंड सेक्टर 22 आ जाएगा कि नहीं इस क्वेरी से? यस सर, आ जाएगा। माइनस के पहले वाली क्वेरी से क्या आ जाएगा, सेक्टर 1, सेक्टर 18, सेक्टर 22। फिर माइनस करके आपने क्या किया कि डिपॉजिटर एंड ए को आपने ज्वाइन कर दिया, और किस कस्टमर के लिए, डी डॉट कस्टमर नेम इक्वल टू के डॉट कस्टमर के लिए। अब समझ में आया ये क्यों लिख रहे हैं, एक एक टपल के लिए चेक करेगा। तो राम के लिए क्या हुआ, इसने दोनों को ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने के बाद राम के लिए जब सेलेक्ट किया ए डॉट ब्रांच, तो उसमें भी क्या आ गया, सेक्टर 1, सेक्टर 18, सेक्टर 22। तो जब इन दोनों को आप माइनस करें तो क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए कि नहीं, मतलब पहली वाली माइनस के पहले वाले से रिजल्ट क्या आ रहा, सेक्टर 1, सेक्टर 18, सेक्टर 22, और माइनस के बाद जो क्वेरी है उसमें भी आ रहा है सेक्टर 1, सेक्टर 18, सेक्टर 22। तो दोनों को जब आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 5। और जब ये 5 आ गया तो नॉट एग्जिस्ट लगाए तो ट्रू हो जाएगा कि नहीं? यस सर। अगर वेयर एग्जिस्ट लिखते तो ये फॉल्स होता, लेकिन आपने क्या लगाया है, वेयर नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब अगर कोई टपल नहीं मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो राम क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। यस सर। इसके बाद राम के कितने टपल हैं, 3 टपल हैं, तो दूसरे टपल के लिए भी चेक करेगा तो राम आ गया, तीसरे टपल के लिए भी किया तो राम आ जाएगा। लेकिन जब श्याम के लिए किया तो श्याम के लिए इससे तो आ गया आपका सेक्टर 1, सेक्टर 18, सेक्टर 22, लेकिन ज्वाइन करने के बाद जो आया वो क्या आया, अल्फा 1। तो जब आप माइनस करोगे तो क्या होगा, 5 नहीं आएगा, फॉल्स आ जाएगा, और वो ट्रू हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, मतलब नहीं फॉल्स नहीं होगा, इस केस में टपल आएगा लेकिन नॉट लगाते ही क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो इसका मतलब श्याम जो है डिस्प्ले नहीं होगा। अगेन थर्ड जो है, थर्ड एंट्री क्या थी, आलोक। आलोक के लिए भी पहले वाले से क्या आएगा, सेक्टर 1, सेक्टर 18, सेक्टर 22, माइनस करोगे तो उससे क्या आएगा, अल्फा 2। तो उसको माइनस करने से क्या होगा, कोई है ही नहीं, वही आपको मिलेगा सेक्टर 1, सेक्टर 18, सेक्टर 22। तो इसका मतलब आपको टपल मिल रहा है, तो उसके लिए भी मतलब वो भी नेम डिस्प्ले नहीं होगा। डिड यू गेट इट? यस सर। हेलो, यस सर। यस सर। आप देखिए इस टेबल में देखिए, पहले क्या होगा, राम, राम को इस टेबल से हमने क्या किया, इस डिपॉजिटर का नाम डी ले लिया, राम को सेलेक्ट कर लिया। अब क्या हुआ कि इन दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद आप देखोगे 101, तो 101 से रिलेटेड या जो जो इक्वल है 102 से रिलेटेड एंड 103 से रिलेटेड जब ज्वाइन आप करोगे, या ब्रांच सिटी ले लोगे तो इससे क्या आएगा, नोएडा के लिए ये तीनों ब्रांच आ गया, और जब आप ज्वाइन करोगे तो भी ये तीनों ही ब्रांच आएगी। तो जब दोनों का माइनस लोगे तो राम के लिए इस टपल के लिए 5 आ गया तो ये आ जाएगा, फिर दूसरे टपल के लिए सर्च करेगा तो उसके लिए भी आ जाएगा, तीसरे के लिए करेगा तो उसके लिए भी आ जाएगा, और श्याम के केस में नहीं आएगा, आलोक के केस में नहीं आएगा। इसीलिए आप देख रहे थे कि इस एंट्री क्या हो रही थी, इसकी एंट्री कि 3 टाइम्स आ रहा था, जब आप डिस्टिंक्ट नहीं लगा रहे थे तो 3 टाइम्स आ रहा था। डिड यू गेट इट? यस सर। तो अगर आपको जो है डिफरेंट नेम चाहिए तो उस केस के लिए यहाँ पे क्या लगाना होगा, डिस्टिंक्ट। यहाँ पे आपको अच्छा। डिस्टिंक्ट लगा देना होगा। डिस्टिंक्ट की स्पेलिंग देखिए गलत है, तुरंत बता दिया आपको, कीवर्ड नॉट फाउंड
DISTINCT. Yes, आगे yes, sir. अब आप ये कह सकते हो कि हो सकता है कि सर आपने तो राम को ही लाना था तो राम कर दिया, तो हम जो है दूसरी एंट्री भी कर देते हैं। Yes, sir. करिए. ठीक है, अगर आपकी क्वेरी होगी तो 100 नेम भी आएंगे तो भी चलना चाहिए। हो सकता है एक टपल के लिए एग्जीक्यूट हो गया हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट इनटू डिपॉजिटर वैल्यूज। वैल्यूज में हम कीबोर्ड से एंट्री कराते हैं, तो एम्परसेंट कस्ट नेम, कस्टमर नेम, एंड सेकेंड वन इज अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम हिमांशु, and then account number 106। then हिमांशु के भी all branches में अकाउंट हैं, he is very rich है हिमांशु, and then 107 तो जीरो बैलेंस वाला है. in जनधन अकाउंट है Yes, sir. हिमांशु। स्पेलिंग देख लीजिएगा हिमांशु की, अगर गलत होगा तो भी क्वेरी नहीं आएगी, रिजल्ट 108। तो 106, 17 एंड 18 कमिट करते हैं एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हिमांशु। अरे क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपॉजिटर। Depositor, sir. ठीक है, ये एंट्री आ गई। अब आप इससे रिलेटेड कहाँ पे चेंज करना होगा, अकाउंट टेबल में भी तो चेंज करना होगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट, अकाउंट में भी एंट्री करनी होगी। सर्ट इनटू अकाउंट वैल्यूज, इसमें कितनी वैल्यू एंटर करनी होगी, 106, देन सेक्टर 1। अच्छा, स्पेलिंग अगर आपने कैपिटल लिख दिया या गलत लिख दिया तो नहीं आता, कुछ स्टूडेंट स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, कहते हैं सर रन नहीं हो रहा है। तो ऐसे तो अपर में लिखिए या लोअर में लिखिए, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन टपल में अगर लोअर केस एंड अपर केस में आप लिखोगे तो वो डिफरेंट होगा। 7 के साथ क्या लिखा जाए बताइए हिमांशु, सेक्टर 18, देन 108 के सामने क्या लिखा जाए, सेक्टर 22। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट, अगर मिलियंस रिकॉर्ड भी है तो भी वो उससे रिलेटेड आ जाएगा। अब कहाँ एंट्री करनी होगी, कहीं और एंट्री करनी होगी बताइए, ब्रांच में करनी होगी कि नहीं करनी होगी, हेलो। अब कहीं एंट्री करनी है, रिस्पांस नहीं दे रहे हो आप। ब्रांच में सर नहीं. अब कहीं नहीं करनी है, ब्रांच तो ऑलरेडी है, नया अकाउंट ओपन हो गया, तो आप सिर्फ डिपॉजिटर एंड अकाउंट टेबल में एंट्री करोगे, ब्रांच में थोड़ी ना करने की जरूरत है, ब्रांच तो ऑलरेडी फिक्स हो गया। अब हम रन करेंगे तो कितने नेम आने चाहिए लॉजिकली, अगर डिस्टिंक्ट लगाए तो 2. तो जितने भी कस्टमर या डिपॉजिटर हैं जिनके अकाउंट ऑल दी ब्रांचेज ऑफ
नोएडा सिटी सेक्टर 1, 18 एंड 22 में है वो सारे नाम आ जाएंगे। इसका मतलब ये क्वेरी सही है लॉजिकली। यस सर। डिड यू गेट इट? यस सर। तो आपने देखा कि रिलेशनल अलजेब्रा का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एसक्यूएल भी लिख लोगे। और ये जो है को रिलेटेड क्वेरी बोलते हैं, एसक्यूएल में क्या बोलते हैं? को रिलेटेड क्वेरी। इससे रिलेटेड हम और भी क्वेश्चन देंगे, आप उसे करिएगा, ठीक है, एसक्यूएल में इंप्लीमेंट करके। और कोई ये एक ही तरीका नहीं है, डिफरेंट वे हो सकता है टू ऑब्टेन द रिजल्ट। पहले हमने बताया कि आप जो है नेस्टेड क्वेरी से भी कर सकते हो, सेल्फ ज्वाइन से भी कर सकते हो। जनरली इस टाइप की क्वेरी जहाँ पे ऑल एवरी ये सब आता है वो डिवीजन से ही होता है। और डिवीजन में हमने क्या कहा कि डिराइव्ड है। क्यों डिराइव्ड है? क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, माइनस के थ्रू ही ऑब्टेन कर रहे हो। क्लियर हुआ? यस सर। बाकी नहीं बोल रहे हैं। जब तक खुद आप एक बार विजुलाइज नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, क्लियर नहीं होगा। यस सर, क्लियर हो गया। चलिए एक बार फिर ब्रीफ में बता देते हैं जिनके समझ में नहीं आया था। ये हर कस्टमर के लिए क्या कर रहा है, यहाँ पे सेक्टर 1, देन सेक्टर 18, ये नोएडा सिटी में जितने भी ब्रांच हैं वो जो है फिल्टर होके आ गया। एंड सेक्टर 22, अब वो एक एक कस्टमर का चेक करेगा कि उसके जो है इन तीनों ब्रांच में है या नहीं है। अगर जिन कस्टमर के लिए अकाउंट तीनों ब्रांचों में है तो ये वाला टपल आ जाएगा, यही सेट आएगा, सेम सेट आएगा, सेक्टर 22। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5। तो जो रिजल्ट है उसके लिए वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। और जो नहीं है, जैसे मान लो किसी के 2 ही में अकाउंट है, सेक्टर 18 में है किसी कस्टमर का, सेक्टर 22 में है, सेक्टर 1 में नहीं है, तो जब आप माइनस करोगे तो 5 नहीं आएगा, तो उस कस्टमर का नाम नहीं आएगा। ठीक है? या हो सकता है किसी के एक ही ब्रांच में है, तो जब आप माइनस करोगे तो सेक्टर 1 18 टपल मिल जाएगा, तो भी ये 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। तो जिसके लिए 5 नहीं आएगा वो डिस्प्ले नहीं होगा। और जिन जिन कस्टमर के लिए ये रिजल्ट 5 आएगा, ठीक है, तो 2 क्वेरी आपने लिखा था S1 और सेकेंड S2, तो S1 से रिजल्ट आ रहा है और S2 से रिजल्ट आ रहा है, उसका माइनस करोगे तो ये क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। ये लॉजिक है। और जो आपका कस्टमर टेबल है उसके एक एक टपल को आप देखते रहोगे। पहले 1 टपल्स को देखोगे, फिर सेकंड वाले को देखोगे, फिर थर्ड वाले को देखोगे। इसीलिए अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस है राम के तो मल्टीपल टाइम आ रहा है, तो उसको जो है हटाने के लिए आपने क्या यूज कर लिया, डिस्टिंक्ट कर लिया। तो डिड यू गेट इट? हेलो? यस यस सर। सर। यस सर। नाउ टाइम इज ओवर। सर डीवीएमएस का भी रेमेडियल क्लास होगा? रेमेडियल क्लासेस तो ये सब रेमेडियल ही क्लासेस तो हैं। जिसको डाउट हो पूछ ले ना, फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। कहीं से कोई भी डाउट है आप पूछ लीजिए। जो लेट ज्वाइनिंग जिनकी हुई है वो क्लास में ही पूछ ले कि सर ये कॉन्सेप्ट बता दीजिए, बता दिया जाएगा। ओके।